very good morning to all of you. This is Abhilash Ranata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number 1 of your book, Political Theory. And the name of your chapter is Political Theory and Introduction. So, in our last class, what we discussed about why do we study political theory? What is the importance of studying political theory and why it is necessary in our life to have these values of political theory equality, freedom, secularism, etc. Why we should study them so deeply. Okay. After that, your next topic of your chapter is putting political theory to practice. Okay. Theory is something which we read about, which we talk about. Okay, but practical things are like when we actually put those theories into practice. That is practical theory. Okay, practically putting any kind of theory into practice is known as practical theory. So, how do we put political theory into practice? So, as you all know, we have like various aspects of political theory in this book, and we talk about various aspects of political theory in this book also, what is the meaning of something like equality or freedom or liberty, or you can say justice. Okay, what is the meaning, origin, what is the significance, and what are the political ideas behind all those uh, values. Okay, so usually we begin all these things with an argument. Okay, कोई भी एक टॉपिक है उसके एक डिबेट से, एक आर्गुमेंट से हम स्टार्ट करते हैं. हम like, what does it mean, what does equality means to you, what does justice means to you, how does it matter in our life, etc, etc. So many political thinkers gave their own definitions for these core values of or these principles like freedom, equality, justice, etc. Okay, they have given their own definitions. But if we talk about like practical subjects of प्रैक्टिकल एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जो हम ओनली प्रैक्टिकली करते हैं, दैट लाइक मैथमेटिक्स एंड ऑल. इफ वी टॉक अबाउट दो सब्जेक्ट्स, अगर कोई भी एक हमने डेफिनेशन ले ली, सपोज व्हाट इज अ ट्राइंगल, तो मतलब वो रिजिड है. ट्राइंगल मीन्स समथिंग विच हैव थ्री कॉर्नर्स. ओके, एक ऐसा एक थ्री उसके कॉर्नर्स होंगे, दैट्स इट. ठीक है, एक ऐसा डायग्राम. स्क्वायर फोर कॉर्नर्स होंगे, इक्वल साइड्स होंगी. तो एक रिजिड डेफिनेशन होती है, मतलब यही होता है स्क्वायर्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता है. बट इन पॉलिटिकल थ्योरी दिस टाइप ऑफ rigidity is not there. Okay, because as you all know, like we all are human beings. ठीक है, we have relationships, we have our concern with relationship. Okay, so these terms like equality, there is an example also. Terms like equality concerns our relationship with other human beings rather than with things. ठीक है, if we talk about circle, if we talk about square, triangle, etc., they have like they are the products, or you can say उनसे कोई material बन सकता है, वो तो shape है. But ये जो equality है, फ्रीडम है, जस्टिस है, सिटीजनशिप है, ऑल दीज थिंग्स हम इन्हें क्या करते हैं, वी फील ऑल दीज थिंग्स. तो ये ह्यूमन बींग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसका कंसर्न है. So we have so many definitions for these, because like human beings have their own opinions. We all are God has made us very unique creatures, all of us very unique creatures. ठीक है, what do you think? Maybe I don't think in that way. You have your opinions and viewpoints, and I have my opinions or viewpoints. And especially on issues like maybe what do you mean by term equality right now is different for you, and for me equality means something else. So there are so many opinions, and we need to
understood these opinions of different human beings, we have to you can say we have to harmonize or coordinate with other human beings with these ideas. So now the question arises, how do we go about doing this? Something कुछ कॉमन तो लेकर आना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि we will work on different definitions. Okay, according to you equality is this. Okay, I have given this right to you. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू इक्वालिटी इज दिस। अब बोलेगा मेरे लिए तो इक्वालिटी का मतलब है कि क्या बोलना, जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हैं मैं भी वहां पे प्रेसिडेंट बैठूं, मैं सारे वो क्या कर सकूं, रूल्स एंड सारे जो भी पावर है प्रेसिडेंट की वो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे लिए इक्वालिटी वो है। ऐसा नहीं होता है ना। लाइक इक्वालिटी की मतलब वहाँ उनकी जो पावर है वो हम नहीं ले सकते हैं, वहां पे हम नहीं बोल सकते कि हमें इक्वल राइट्स नहीं है। नो। सो let us begin with our common experience of equality in different places. So you have noticed that people often jump the queue in shops or doctors waiting rooms or government offices. Normally देखा ही होगा आप लोगों ने. Sometimes those who do so are told to get back in line and we feel glad. Sometimes they get ahead and we feel cheated. We resent this because we all want equal opportunities to get good goods and services for which we are paying. Okay. नॉर्मली देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखा होगा या कहीं पे वेटिंग रूम है, या आप बोल सकते हो कोई कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है तो वहां पे टिकट सेल आउट हो रही है, तो वहां पे आप क्यू में खड़े हो, और अगर कोई आपसे आगे जाता है और समवन लाइक उसको बोल देता है, समवन सेड कि प्लीज गो बैक, लाइक get back in line, like we are also standing here and something like that. And स्पेशली उस टाइम पे अगर जब वो बंदा चला मतलब लाइक जो वो पर्सन है वो अगर पीछे चला जाएगा, ठीक है, अपनी लाइन में चला जाएगा, तो एक्चुअली में वी फील सो ग्लैड कि यस, हाँ वो चला गया और वही आगे चला गया, और मे बी हमसे हम लोग को कैसा सा फील होता है उस टाइम पे, चीटिंग सा फील होता है कि यार हम भी तो लाइन में खड़े हैं इतने टाइम से, वो आया और उसको सीट मिल गई या फिर उसको क्यू में अंदर घुसा लिया, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो बिकॉज why we like feel so cheated, and जब हम मुझको बोलते हैं बैक गेट बैक इन लाइन एंड वो सच में लाइन में चला जाता है, we feel glad. why so, ऐसा क्यों होता है? because we all want because we all want equal opportunities to get goods, ठीक है, equal opportunities to get goods and services for which we are paying. फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, लाइक एटीएम से पैसे निकालने, आई डोंट नो आपको याद है नहीं है, बट उस टाइम पे लाइक एटीएम से अगर मनी विड्रॉ भी करना है ना, तो हमें लाइंस में बहुत लंबी लंबी लाइंस में क्यू में हमें ना खड़ा रहना पड़ता था। तो अगर कोई आगे चला जाता था या फिर एक्चुअली में हमें बहुत बुरा लगता था, ठीक है। वाई? क्योंकि वी नो कि उस एटीएम मशीन में जो पैसे होंगे वो लिमिटेड लिमिटेड उसमें अमाउंट होगा, ठीक है, और हम लिमिटेड अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं एक बार में। तो मे बी हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पे इक्वालिटी ना रहे, हमें वो प्रोडक्ट ना मिल पाए, हमें वो सर्विस ना मिल पाए, ठीक है, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, एंड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देयर इज अ टर्म दैट इज इक्विटी, ठीक है। वी शुड बिलीव इन इक्विटी देन इक्वालिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी तो मिलनी चाहिए। At the same time, if there are separate counters for the old and disabled, we understand that such special treatment may be justified. If like you often you often saw that कि वुमेन के लिए अलग लाइंस होती है, जो ओल्ड पीपल है या जो डिसेबल पीपल है उनके लिए अलग होती है, या फिर और नॉर्मली लाइक एक मेन के लिए अलग लाइन है। तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि ओके दिस इज वेल लाइक ओके जस्टिफाइड है, ओल्ड एंड डिसेबल्ड है वो इजीली लाइक जल्दी जल्दी प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते हैं,
उनको ज्यादा लाइक ओके वी फील जस्टिफाइड फॉर देम, ठीक है कि हाँ ओके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, दैट्स फाइन। बट sometimes what happen, many poor people cannot go to the shop or doctor because they have no money to pay for goods and services. Some of these people could be day laborers who are cutting stones or lugging bricks for long hours. If we are sensitive, we feel that it is not fair that in a society some members cannot even have their basic needs satisfied. We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by economic factors. Sometimes like पुअर पर्सन का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ लोग जैसे डेली लेबरर्स होते हैं, डेली वेज लेबरर्स होते हैं, वो कट स्टोन्स कट करते हैं या फिर ब्रिक्स को लग करके या फिर ब्रिक्स को कैरी करके क्या करते हैं, लेके जाते हैं या फिर ब्रिक्स बना रहे होते हैं। तो लाइक मोस्टली जो इमोशनल या आप सेंसिटिव बोल सकते हो या जिसमें ह्यूमैनिटी है, तो उस टाइम पे ये लगता है, ऐसा लगता है कि सोसाइटी में फेयरनेस होनी चाहिए कि कुछ मेंबर्स को तो सब कुछ मिल रहा है और कुछ मेंबर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो डिसएडवांटेज है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो पुअर है दैट्स वाई उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल इक्वालिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो वी शुड प्रोवाइड दैम इक्वालिटी, ठीक है। सो कंसिडर द फैक्ट दैट देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु कैन नॉट गो टू स्कूल। वन मोर एग्जांपल, व्हाई क्यों नहीं जा सकते हैं? बिकॉज दे हैव टू फीड देमसेल्फ, बिकॉज दे हैव टू, मे बी दे हैव टू फीड देयर फैमिलीज, कि उनकी फैमिली की कंडीशंस ऐसी है कि उनको वर्क करना पड़ रहा है। दे डोंट हैव लाइक यू कैन से कि उनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता है। बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स जो है स्पेशली इन पुअर हाउस होल्ड्स, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे भाई बहन की वो क्या करे, घर पे केयर करे, ठीक है। जब उनके पेरेंट्स वर्क पे जाए तो घर पे जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करे, तो इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को। बॉयज के साथ भी होता है बट स्पेशली गर्ल चाइल्ड को देखने को मिलता है। इवन दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, दिस राइट रिमेन्स फॉर्मल। Again, we may feel the government should do more for such children and their parents so that they are enabled to go to the school. Okay. Now, what happened? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए टिल द एज ऑफ 14 एंड ऑल। बट अगेन बहुत ही फॉर्मल ये जो है राइट है, बहुत फॉर्मल है। पेरेंट्स को अवेयर करना, ठीक है, चिल्ड्रन को लाइक इनकरेज करना स्कूल जाने के लिए कि यस इट इज इम्पोर्टेंट एंड वी शुड गो टू द स्कूल। और गवर्नमेंट को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन को इनरोल कर सके, पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके, एनकरेज कर सके कि यस स्कूल इज गुड। So thus you may see that our idea of equality is quite complex. Okay, अब different ideas देखें। जहाँ पे हमने क्यू में देखा या प्लेग्राउंड में देखा, ठीक है, प्लेग्राउंड में अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं या फिर हम कहीं पे कोई प्रोडक्ट लेने गए हैं, वहां पे हम क्यू में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, वहां पे अगर कोई लाइन कोई ब्रेक करता है, ठीक है, आगे जाने की कोशिश करता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम उस टाइम पे हमें लगता है इनइक्वालिटी फील करते हैं, ठीक है। तो और कहीं पे हमने देखा कि कुछ लोग डिसेबल है, ठीक है, और वहां पे अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए लाइन अलग से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे इक्वालिटी का मीनिंग अलग है। इकोनॉमिक टर्म्स में भी हमने देखा कि पुअर्स के लिए कि कुछ लोगों के पास जो रिच है वो तो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंजॉय कर पा रहे हैं, बट जो पुअर है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आप जो रिजर्वेशंस बोलते हो किस लिए है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए ही तो है कि जॉब्स हो गई, उनको डिसेंट वेजेस मिले, हॉस्पिटल्स मिले, सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स मिले, तो उनको वो लाइक इट इज अ स्टेप फॉर गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। सो देयर आर सो मेनी रीजंस
and talked about so many definition, is it is because the meaning of equality is dependent on the context, कि हम किस context में बात कर रहे हैं. ठीक है. We started with what it meant of for ourselves, and then proceeded to consider others, the poor, the disadvantaged, the senior groups, the classes, the different classes. So we discovered many layers of meaning. We have been doing political theory without realizing it. So all these are like, what are these? These are the feelings. Okay, these are the emotion. तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में इक्वालिटी की जो डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है. एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. They also debated and examined the diverse meaning and opinions in a systematic manner. When is equality of opportunity enough? When do people need special treatment? How far and long should such special treatment is given? Should poor children be given midday meals to encourage them to stay in schools? These are some questions which they other concepts. Political theories engaged with everyday opinion, debate, possible meaning, and thresh out policy options. Freedom, citizenship, rights, development, justice, equality, nationalism, and secularism are some of the concepts that we will discuss in the following chapters. So, class, just look at this. हमने देखा अब पॉलिटिकल थ्योरीज जो है, according to the concepts, according to the political concepts, according to the needs of the people, they give their definitions in their own languages, in and the language which we use in our day ordinary day or something like that. तो उन्होंने क्या किया, आर्ग्यू किया, ठीक है, डिबेट किया, एग्जामिन किया, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में उसको एक उसके अलग अलग ओपिनियंस को उन्होंने सोचे, ठीक है, उसके ऊपर सोचना, थिंक करने लगी. एंड आफ्टर दैट लाइक उस थिंकिंग में क्या था कि अगर हम किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो कहाँ तक वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ है. ठीक है, कहाँ तक एक लिमिट तो होगी ना. ऐसा तो नहीं है हर जगह ही हम क्या कर रहे हैं, उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम पे हर जगह ही लाइक हम वी आर प्रोवाइडिंग देम दोज थिंग्स. ठीक है. व्हेन डू पीपल नीड, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में कि जॉब में इक्वालिटी होना चाहिए. ठीक है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ओके, हमने फॉर एग्जाम्पल जो रिजर्वेशंस है उनमें कि उनमें एक जो परसेंटेज है कि ठीक है कुछ मिनिमम परसेंटेज जो है कंपेयर टू जनरल कैटेगरी वो डिफरेंट होता है, क्या वो कम भी होता है. हमने ये दे दिया कि जिससे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले उनको, सीट्स उनके लिए मतलब ओपन रहे. बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो आगे जाके फेल होता जा रहा है, वो क्लियर कर दिया बट उसके बाद कॉलेज में जाके वो फेल होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है. बट फिर भी हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम पे हम क्या बोल रहे हैं, नहीं इसको हम प्रमोट कर रहे हैं और प्रमोट करके इसको डॉक्टर बना रहे हैं. ये तो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है ना. तो किस हद तक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. स्पेशल ट्रीटमेंट, लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए. ठीक है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ तक होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई अब देखा होगा कहीं पे आपने कुछ जगह वुमेन और मेन की लाइन सेपरेट होती है और कुछ जगह ओनली सिंगल लाइन होती है. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की क्या सिचुएशन है और कहाँ पे हमें देना चाहिए. पुअर चिल्ड्रन को मिड डे मील मिलना चाहिए तो कब तक मिलना चाहिए. तो these are like some of the questions, ठीक है, which we discuss in practically we will discuss about all these things in our further chapters of justice, equality. In this book, we all are going to study about all these things only. Okay, so we will discuss all these things in the further chapter. Now, just look at this blue boxes. Just have a look on this. Then men who are injured are necessity made unjust.
This is just a minute. Yes. So now, in ancient Greece, in the city of Athens, Socrates was described as the wisest man. He was known for questioning and challenging popularly held beliefs about society, religion, and politics. For this, he was condemned to death by the rulers of the Athens. बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल थिंकर है ये सॉक्रेट्स। बहुत सारी थ्योरीज उनकी जो है आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, उनके जो क्वेश्चंस थे एंड उनके जो आंसर्स थे बहुत बार यूज करते हैं। ही बिलोंग टू एशियन ग्रीन्स और एथेंस में रहते थे वहाँ वो। बहुत अनचैलेंजिंग और बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस वो क्या करते थे, अराइज करते थे अबाउट सोसाइटी, अबाउट रिलीजन, अबाउट पॉलिटिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दैट्स व्हाई ही हैंग टू डेथ, सॉरी, ही हैंग टू डेथ बाय द रूलर्स ऑफ एथेंस। क्यों? क्योंकि वो वहां के रूलर्स के रूलिंग में क्या कर रहा था, क्वेश्चनिंग कर रहा था। His student Plato, he is also a very good thinker, wrote extensively about the life and ideas of Socrates. In his book, The Republic, question arise हो जाता है कि The Republic किसने लिखी है? The Plato is the one. Plato was the one who wrote this book, The Republic. He created the character Socrates and through him examined the question, what is justice? देखिए, इन हिज बुक लाइक उसने क्या किया, सॉक्रेट्स का एक कैरेक्टर्स बनाए और उसमें एग्जामिन करते हुए क्या किया, क्वेश्चन अराइज किया, व्हाट इज जस्टिस। सो बेसिकली द बुक ओपन्स विद द डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड सेफिलस। सेफिलस भी जो है एक सॉक्रेट्स और सेफिलस के बीच में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। In the course of this dialogue, Cephalus and his friends come to recognize that their understanding of justice is inadequate and unacceptable. ठीक है, we will talk about it like क्या था। So the important thing in this that Socrates uses reason to reveal the limitations and inconsistencies in a given point of view. Socrates जितने भी क्वेश्चंस उनके अराइज होते थे, ठीक है, उसमें क्या था कि उनके रीजंस होते थे कि हम वो रीजंस लॉजिक देते थे। वी टॉक अबाउट लॉजिक्स नाउअडेज, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों करना है, ठीक है। सो हम बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स मांगते हैं। तो जस्ट लाइक दैट सॉक्रेट्स भी जो था कि अगर ओके सोसाइटी में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, रीजन दीजिए। तो so he revealed the limitations and inconsistencies in a given point of view. कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रीजन दिया और वो लाइक मतलब अननेसेसरी रीजन है, तो वो उस पे क्या करता था, पॉइंट आउट करता था। his adversaries eventually admit that the views that they had held and lived by could not be sustained. और क्या हुआ था, अब उसे धीरे धीरे पता चल गया था लाइक कि ओके मैं जैसा हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ, सोसाइटी वैसा नहीं सोच रही है अभी। तो ये जो है क्या है, अनडिफाइंड है और सस्टेन नहीं कर सकते हम ऐसे। So now read and see how Socrates achieved these. Well said, Cephalus, I replied, but as concerning justice, what is it? To speak the truth and to pay your debts, no more than this. No more than this, like according to like maybe Cephalus ने जो रिप्लाई दिया कि सच बोलना और डेब्ट्स को, जब जितने भी आपके डेब्ट्स है उसे पे करना, ठीक है, वही क्या है, जस्टिस है। क्या जस्टिस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड इवन टू दिस आर देयर नॉट एक्सेप्शंस। Suppose that a friend, when in his right mind, has deposited arms with me, and he asks for them when he is not in his right mind, ought I give them back to him? मे बी मेरा एक फ्रेंड जो है लाइक अपने गुड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, ठीक है, मे बी उसने बहुत पहले मुझे कुछ हेल्प किया होगा और वो अपने गुड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और मुझसे वो फिर से मांग लिए, तो क्या मैं उसको दे दूं? वो तो अपने स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है ना। तो so you are quite right, he replied. But then I said, speaking the truth and paying your debts is not a correct definition of justice. And instead of saying simply as we did at first,
that it is just to do good to our friends and harm to our enemies. We should further say it is just to do good to our friends when they are good and harm to our enemies when they are evil. Okay, now he give वही डेफिनेशन है बट उसने एक अलग तरीके से प्रेजेंट की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग वो बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे जितने दोस्त है उनके साथ क्या है भला करो और जो एनिमीज है उनके साथ हार्म करो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट हमें क्या कहना चाहिए, इट इज गुड टू डू गुड टू आवर फ्रेंड्स व्हेन दे आर गुड। जब वो अच्छे हैं वी शुड डू गुड, बट जब वो हमारे एनिमीज बनते हैं एविल बन जाते हैं, ठीक है, तो हमें उनके साथ क्या है हार्मफुली हार्म करना चाहिए। तो ही गिव दिस सेम डेफिनेशन बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो बट ought the just to injure anyone at all? Undoubtedly he ought to injure those who are both wicked and his enemies. So now what नाउ सेफिलिस क्या कहते हैं, इसका मतलब कि हम तो सबको इंजर कर रहे हैं, बट he said undoubtedly he ought to injure those who are both wicked and his enemies, कि जो enemies हैं जो wicked हैं उनके साथ हमें इंजोर करना है, ना कि जो अच्छे हैं। So then horses are injured, are they improved or deteriorated? The latter, the deteriorated. Now what is the meaning of deteriorated? मतलब अगर हॉर्स जो है अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो क्या वो इम्प्रूव हो रहे हैं या डिट्रॉयटेड हो रहे हैं? सो ही सेड द लेटर, मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवली वर्स मतलब और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। सो डिट्रॉयटेड, that is to say, in the good qualities of horses, not of dogs. Yes, of horses, like अगर वो वर्स हो रहे हैं या फिर उनकी सिचुएशन और बिगड़ रही है, तो जो गुड क्वालिटीज हैं, हम हॉर्स की गुड क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे डॉग्स की। तो नाउ ही सेड yes of horse, yes of horses. So and dogs are deteriorated in the good qualities of dogs and not of horses. So he said yes, of course. So, and will not men who are injured be detroited in that which is the proper virtue of man? So then he says certainly. So we all are like, he's just want to say that animals, human beings, all are like same. ठीक है, उनके good virtue में. If they are good to us, give good to them. If they are bad to us, give bad to them. So, and that human virtue is justice, to be sure. Okay, these are like some of the conversational dialogues between Socrates and Cephalus, and this was created by Plato. Okay, so now then men who are injured are of necessity made unjust. So that is the result. But can the musician by his art make man unmusical? Certainly not. Or the horseman by his art make them bad horsemen? Impossible. So, and can the just by justice make them unjust? Or speaking general, can the good by virtue make them bad? Assuredly not. So, nor can the good harm anyone. Impossible. And the just is the good. Certainly. So this is like very complex. Like you see, it's a conversation between them, and वो सॉक्रेट्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सॉक्रेट जस्ट यही बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइक डू गुड टू ऑल दोज हु आर गुड टू अस, एंड जो इक्वालिटी है, जो जस्टिस है, वो एक पर्टिकुलर एक उसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। वी हैव लॉट्स ऑफ एम्पल अमाउंट्स ऑफ डेफिनेशन फॉर दैट। ओके, so this is all about today class. Go through the topic, and if you face any doubt you may ask me in my next class, or you do may call me or message me. Thank you so much. Yes, if you have any doubt right now you may ask me now also. We have time. No doubts?
Very nice. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care.